Hi everyone, welcome to my channel. Today we will be discussing all there is to know about college internships. Without further ado, let's get started. Hello everyone, this is Soumyajit Bhattacharya. I work as a senior software engineer in a leading fintech company in Hyderabad. I am making today's video to help out all those students who will be, sitting in this coming placement season for internships. So what are internships? मैं कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री के बारे में बोलूँगा. Internships are a great way for any student to actually learn how humongous our applications, how complex architectures are actually made using simpler technologies. Internships provide a great platform for students to showcase their skills. Doing internships from good tech companies has a host of advantages. One of them being आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा exposure मिलता है. दूसरा, आपका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप रहता है, तो आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छे से जान पाते हो. कैसे क्लीन कोड लिखना होता है वो आप जान पाते हो. और नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग यू स्टैंड अ चांस टू गेट अ पीपीओ. सो ये पीपीओ क्या होता है? पीपीओ इज नथिंग बट प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो कि एक जॉब ऑफर ही होता है जो ये कंपनीज रोल आउट करती है टू दो स्टूडेंट्स हु परफॉर्म वेल ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप टेन्योर. So comment down below if you would like to see interviews of those students who has actually bagged these PPOs from these good tech companies. Comment down below if you would like to learn what you should do on a daily basis while doing your internship regularly so that you can convert your internship to a full-time offer. ऐसा सुन के ये लग रहा है कि इंटर्नशिप मिल गया तो लाइफ जंगल, बट ऐसी भी कोई बात नहीं है. हाँ, ये बात सच है कि अगर आपको अच्छे बिग टेक कंपनी से इंटर्नशिप मिल जाती है तो आपके करियर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, आपके रिज्यूमे में अच्छा ब्रांड आता है. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको किसी गंदे कंपनी पे इंटर्नशिप मिलती है और आपको करना पड़ता है वो इंटर्नशिप, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पे बहुत ज़्यादा होता है. तो फॉर अ स्टूडेंट ये परखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं और कौन सी कंपनीज बुरे. So some of the companies which provide great internship opportunities in our country are Google, Amazon, Flipkart, RCZM, DE Shaw, Uber, Salesforce, etc. All of these companies belong to a category which is known as product-based technology companies. I will be preparing company-specific preparation strategies and I will be uploading them soon. So make sure to stick around with my channel. Like and share this video, subscribe to my channel and hit the notification bell so that जब भी मैं ये सारे वीडियोस अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा. One question that I almost always get from many of my juniors or be it from my friends is that if we do not get into these big tech companies for internships or for placements or for internships, then what? तो इसके जवाब में I would say कि फिकर not, even if you do not get into these companies for an internship, it's not the end of the world. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. Have faith in yourself. And obviously बात है कि it would have been extremely good if you had gotten an opportunity in such firms because it gives you massive amount of exposure. But having said that, अगर नहीं भी मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है and it's not the end of the road. मैं यहाँ तक कि ये भी बोलूँगा कि please, if you do not get such opportunities, do not join those companies where your work as an intern is not valued, where you do not see yourself working, where you do not want a PPO from a company. Please do not waste your time in working for those kinds of companies. Why I am saying this is because if you are doing an internship there, you will be investing a lot of your time into that company, into a company which does not value you. And since in most of the colleges, as soon as the internship period finishes, placement starts.
So you will be essentially trading your studies for doing an internship that is A, not paying you enough, and B, you're not learning anything. So इसका सीधा सीधा असर आपके प्लेसमेंट पे पड़ेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको नहीं मिला है इंटर्नशिप तो इसको एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए एंड ट्राई टू focus on studies for placement so that you can get a better placement in the coming season. तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग इज ओके। बस आप आपका सारा जो एनर्जी है उसको फोकस कीजिए पढ़ाई करने में और अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को अपग्रेड करने में, ताकि आपका ऐसे ही बिग टेक कंपनीज में अच्छे से हो जाए। एक और सवाल जो मेरे को कई बार पूछा गया है ये वो है कि क्या ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ टॉप के कॉलेजेस से हायर करती है और क्या ब्रांच मैटर करता है इन कंपनीज में बैठने के लिए। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आई वुड से कि दिस इज नॉट ट्रू। there is no college specific criteria for hiring in any of these companies, and what I would say is for the branch, generally the eligible branch are CSIT, CE, electrical and triple E। ये सारे ब्रांचेस के बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं इन सारे कंपनीज में। एंड वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप इन माइंड इज दैट द कॉलेज डज नॉट डिफाइन यू, इट इज़ यू हु विल डिफाइन यू एंड दैट्स इट। तो कोई से भी कॉलेज से हो, कभी भी खुद को किसी भी दूसरे कॉलेज के बंदे से कम नहीं समझना, क्योंकि ये पूरा पूरा आपके पोटेंशियल पे है, आप क्रैक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और किसी बात में ये मैटर नहीं करता, किसी भी चीज़ पे ये मैटर नहीं करता है। व्हाट आई वुड से इज अगर आपके कैंपस में भी ये कंपनीज नहीं आती है, इट इज़ ओके, वी कैन ऑलवेज अप्लाई ऑफ कैंपस टू दीज कंपनीज without any problem. I will be making subsequent videos where I will detail out कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमें रिक्रूटर्स को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें दूसरे बंदों को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हम बात करना चाहिए, कैसे हमें लिखना चाहिए और क्या लिख के अप्रोच करने से ज़्यादा हिट्स मिलते हैं, कैसे रिज्यूमे बनाना चाहिए और अच्छे तरीके से कंपनी के स्पेसिफिक, सो दैट मोर ऑफन देन नॉट आपका ये चांस हो कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का होता है अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो तो रिज्यूमे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। आई विल बी मेकिंग सब्सिक्वेंट वीडियोस ऑन स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू अप्लाई टू दिस कंपनीज इन एन ऑफ कैंपस फैशन, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है, so that you can also apply to these companies in off-campus fashion. उसका जस्ट एक बताने के लिए आई विल से देयर इज एन ऑसम सोशल वेबसाइट विच इज नोन एज लिंक्डइन, जो हम सबको पता होगा। तो लिंक्डइन में वी हैव टू बी एक्टिव। अगर हम लिंक्डइन में एक्टिव नहीं हैं तो ऑफ कैंपस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना या कॉल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिंक्डइन में देर आर ऑल द कंपनीज हैव their profiles in LinkedIn. Every recruiter from every company is extremely active in LinkedIn. तो हम लोगों को बेसिकली हमारा जो नेटवर्क है लिंक्डइन में वो स्ट्रॉन्ग करना है। हमको नेटवर्क बनाना चाहिए और उसके बाद फिर जो भी रिक्रूटर्स है या जो भी बंदे हैं जो इन बड़ी टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको कांटेक्ट करना चाहिए डायरेक्टली। इससे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने की और आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट होने की आगे के राउंड के। एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे को कई बार ऐसा पूछा गया है, हमारे जूनियर्स ने और हमारे दोस्तों ने पूछा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज कंपनीज, क्या क्या पढ़ना चाहिए इन कंपनीज को क्रैक करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में, अभी वापस से मैं बता रहा हूँ कि आई विल बी मेकिंग कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस सब्सिक्वेंटली, तो वो भी आप तक पहुँच जाएगी। कुछ ही दिनों में सारी वीडियोस ड्रॉप होने वाली है। मैंने
सारे वीडियोस में काम करना शुरू कर दिया है, अभी ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिनों में और ये एक-एक करके आने लग जाएगा। तो मेरे चैनल में बने रहिए। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए या किस-किस जगह पे हमें अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, आई वुड से कि ऑब्वियसली इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम कंपनीज़ टू कंपनीज़, बट इन जनरल जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती है एक एटलीस्ट एक इंटर्नशिप वाले बंदे से कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट्स एक्सपेक्ट करती है कि ये सारी चीज़ें आती हो। जनरली कुछ कुछ कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम हेवी इंटरव्यूज होता है उनका. So there are certain companies which primarily test candidates' ability on the basis of how they solve coding questions, how they solve data structures and algorithm questions, and how good is their problem-solving ability. But on the other hand, there are certain other companies which give equal weightage to your computer science fundamentals, such as operating system and DBMS. एटलीस्ट ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एस्पेक्ट आ जाता है जो है लो लेवल डिज़ाइनिंग का. कुछ कुछ कंपनीज आर देयर जहाँ पे एक राउंड हो जाएगा आपके लो लेवल डिज़ाइनिंग का. लो लेवल डिज़ाइनिंग इज बेसिकली क्लास डिज़ाइन जो ये कंपनीज पूछती है टू सी हाउ good candidate is in OOPS concepts. तो बट ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट स्पेसिफिक है और इंटर्नशिप्स में जनरली कंपनीज इस पे नहीं जाती है. और प्लेसमेंट्स में भी मतलब बहुत ही कम कंपनीज है जो कि लो लेवल डिज़ाइन एक्सपेक्ट करती है. हालांकि लैटरल हायर्स के लिए लो लेवल डिज़ाइन एक इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो एक राउंड तो होगा ही होगा चाहे आप किसी भी लेवल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो. और अगर आप सीनियर लेवल्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो लो लेवल डिज़ाइन के साथ द कंपनीज आल्सो एक्सपेक्ट दैट यू हैव गुड नॉलेज ऑन हाई लेवल डिज़ाइन एज वेल, जिसको कि हम कहते हैं सिस्टम डिज़ाइनिंग. But system designing and low-level design are generally not required for internship preparations. That will be it for this video. But I would like to discuss about the scope of my channel, about how I want my channel to grow. और मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या और देखता हूँ अपने चैनल में, वीडियोस क्या क्या और बना सकता हूँ, ये सब क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई विल आल्सो अपार्ट फ्रॉम creating content for you guys, I will also be conducting mock interviews for you guys. मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करने का एक ही क्राइटेरिया है या एक ही रीज़न है, बिकॉज आई फील इंटरव्यू प्रैक्टिस से ही कोई बंदा अच्छा बनता है. मतलब वी कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट जब तक कि वो इंटरव्यू का प्रैक्टिस होता है तब तक वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. That's why, so that it benefits you all, I am thinking of conducting mock interviews. I'm thinking of conducting online tests in HackerRank and HackerEarth. So I have given my Instagram account below in the description. I've given the channel's Instagram account below in the description. Follow me, follow the channel, hit me up with a DM and just say if you would like to be part of the mock interview series, if you would like to be a part of the online test series, so that you can prepare better, so that you have more confidence while going into these interviews. Comment down below what more different kind of videos would you like me to do, would you like me to take up, and also comment down below whether or not you think my video was helpful to you. That will be it for today. Thank you. This is Soumyajit bidding goodbye. Das Vidanya.